Hello dear students, this is your physics teacher Ashish Sharma, and in today's lecture I will discuss with you characteristics of simple harmonic motion along with how to calculate time period of simple pendulum and loaded spring. We will also discuss kinetic and potential energies of simple harmonic motion. So before I start, let me give you a brief revision. We have studied that displacement can be represented as a function of time using relation y is equal to a sine omega t or y is equal to a sine theta. And also there is a point worth noting here that we can also write it like y square is equal to a square sine square omega t, or y square by a square is equal to sine square omega t. Okay, we are going to use this relation later in derivation. Take care of this. So velocity, as we discussed, differentiating our equation a sine omega t, differentiation of sine omega t is cos omega t, and into omega, because it is not function of t, so omega will come in multiply, so v is equal to a cos omega t. Again we can write cos omega t as square root of 1 minus sine square omega t using the trigonometric identity, and we can write v is equal to a omega 1 minus sine square omega t. Now you remember here that we can write sine square omega t as y square by a square. The same value from here I'm going to put it here in sine square omega t. In place of sine square omega t, y square divided by a square. Now when this a will go inside the square root, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा बाहर ए स्क्वायर अंदर, और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से जब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर बचेगा. तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया वेलोसिटी का, जिसमें आप वेलोसिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से. तो जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने पहले गिवन डिस्प्लेसमेंट पे कैलकुलेट किया था कि लेट इफ एट एनी इंस्टेंट y is equal to a by 2, then calculate the velocity. So in this numerical we can either find it the phase like I discussed with you in last lecture, or we can also use directly this formula, that velocity is equal to omega a square minus y square. So v is equal to omega square root a square minus y square. So when your y is equal to a by 2, velocity is equal to omega a square minus a square by 4. In place of y I will write a by 2. So a square minus 4 is going to be a outside the square root. 1 minus 1 by 4 is square root of 3 by 4, or it is equal to root 3 by 2 omega a. That is your desired velocity when your y is equal to a by 2, that much meter per second. So this is how you can use this formula of velocity. Similarly, as I discussed with you earlier, y is equal to a sine omega t, v is equal to a omega cos omega t. Differentiating first equation, again differentiating it, differentiation of cos omega t is minus omega sin omega t, तो एक ओमेगा और आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया. और फिर इस रिलेशन में a sin ओमेगा t को y लिख देंगे अगर हम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y. The minimum value of acceleration is 0 when y is equal to 0. The maximum value of acceleration is minus omega square when y is equal to a. The negative sign is indicating acceleration is always in the opposite direction of displacement. टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो अभी अभी जैसे अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लें एक्सेलरेशन वाली रिलेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा स्क्वायर इज ए बाय वाई, और या फिर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ए बाय वाई, और ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई बाय टी, या फिर टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. तो ओमेगा की वैल्यू जब हम लिखेंगे डिवाइड में रूट ए बाय वाई, तो वो रूट वाई बाय ए हो जाएगी. ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया. रिमेंबर दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू time period of simple pendulum. T is equal to 2 pi root L by g, where L is also the length and g is also acceleration due to gravity. हम इसको लेटर प्रूव करेंगे अभी, कीप इट इन माइंड. ओके, एनर्जी की बात करते हैं. तो हमें पता है सच में दो एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय U.
सो अगेन द बेसिक रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आप वेलोसिटी वाले रिलेशन के साथ ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर रूट और क्या था फिर हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास दोनों रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वाई भी आ जाएंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। डिस्प्लेसमेंट तो पहले आपके पास इन टर्म्स ऑफ ए एंड टी है ही। तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब अगर हम एम ओमेगा स्क्वायर को एक कांस्टेंट मान ले, स्मॉल के कांस्टेंट, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज फोर्स लॉ इन एसएचएम, इसे फोर्स लॉ भी कहते हैं। और जो ये के है, इस के को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ एसएचएम, या फिर इसको हम स्प्रिंग फैक्टर भी कहते हैं। स्प्रिंग फैक्टर इज के इन एनी एसएचएम मोशन। तो ऊपर वाले रिलेशन में अभी हमने कैलकुलेट किया एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और एम ओमेगा स्क्वायर को हमने के मान लिया एक कांस्टेंट। तो हमारा जो एफ है वो इक्वल हो गया माइनस के वाई के। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई के, जो ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो इसी रिलेशन को देखते हुए अगर मैं लिखूँ डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी वाई, ठीक है। क्योंकि एसएचएम के अंदर जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए वर्क नेगेटिव। और डी एफ की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ माइनस के वाई, तो के से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस के वाई डी वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये डब्ल्यू बन जाएगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी, और के कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, या फिर डब्ल्यू यू इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, दोनों सेम रिलेशन है। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने इधर के से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल के से। तो ये फार्मूला हमारा रीनोन है काइनेटिक एनर्जी का, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी की हमने वैल्यू रख दी है ओमेगा कोस ओमेगा टी, स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दिया आइडेंटिटी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वापस जो पहली इक्वेशन हमने पढ़ी थी ऊपर, ये वाली साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखते हुए, फिर ए स्क्वायर को अगर अंदर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करने, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो के जो है हमारा वो एम ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसको मैं अगले स्टेप में यूज़ कर सकता हूँ, मतलब दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इक्वल टू हाफ और के और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि जो के है मेरा, ये वाला के जो है मेरा स्मॉल के, ये मेरा एस एच एम का कांस्टेंट है, और कैपिटल के मेरी काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी जो एस एच एम में होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने जस्ट अभी ड्राइव किया था, हाफ के वाई स्क्वायर, ओके। और प्लस में अभी अभी हमने कैलकुलेट किया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका प्लस हाफ के वाई स्क्वायर से माइनस हाफ के वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर इस रिलेशन को आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर। तो ये हाफ के वाई स्क्वायर से हाफ के वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस के ए स्क्वायर बच जाएगा। तो ये प्लस के ए स्क्वायर आपके पास एनर्जी बच जाएगी।
और जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर जो हमने ऑलरेडी अभी एम ओमेगा स्क्वायर माना था, तो E इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला आ गया टोटल एनर्जी का एट एनी इंस्टेंट, जब आपको ए एक्सेलरेशन पता हो, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम इज़ द मास। तो आप देख रहे हो इस रिलेशन में कि विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन और वेलोसिटी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है आपकी वो कांस्टेंट रहती है, चाहे कोई भी पोजीशन हो पार्टिकल की या कुछ भी वेलोसिटी हो। अगर वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़ीरो होती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब अगर हम टाइम पीरियड का डेरिवेशन करें सिंपल पेंडुलम का, तो सिंपल पेंडुलम में आप ये देखो कि ये पेंडुलम है आपका जिसकी लेंथ है एल है, ये वेट इसका डाउनवर्ड एम जी। अगर ये वाला एंगल ऊपर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी कोस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। अगर हम टॉर्क निकालें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो लेंथ है आर्म की वो एल है, तो हमारे पास टॉर्क का फार्मूला आ जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। माइनस क्यों? क्योंकि हमारा सिंपल पेंडुलम का मोशन एस एच एम है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस की डायरेक्शन आएगी फोर्स की हमेशा। तो टॉर्क आ गया माइनस एम जी एल साइन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टॉर्क को हम लिख सकते हैं माइनस एम जी एल थीटा। अदरवाइज भी अगर हम देखें तो किसी भी रोटेशनल सिस्टम में इन जनरल सेकंड इक्वेशन के बाद, जैसे किसी स्प्रिंग को अगर हम घुमाएं और के उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हो, तो आपका टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। जितना आपको स्प्रिंग को घुमाना पड़ेगा उतना ही आपको टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन थीटा। तो टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा, वेयर के इज़ अगेन रिप्रेजेंटिंग स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सिस्टम जिसे हम रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हमें सिंपल पेंडुलम का स्प्रिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो इनको कंपेयर करते ही माइनस से माइनस कट गया, थीटा से थीटा कट गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको सिंपल पेंडुलम का मिल गया एम जी एल। ये हमने लेक्चर वीडियो जूम क्लास 1 में हमने यूज़ भी किया था जब एक बच्चे ने टाइम पीरियड पूछा था सिंपल पेंडुलम का। तो स्मॉल के इज इक्वल टू एम जी एल हमें मिल गया। नाउ वी नो दैट कि जो जनरल फार्मूला है हमारा एस एच एम का वो क्या होता है टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2 पाई इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर। इसे इनर्शिया फैक्टर कहते हैं और ये दूसरा है हमारे पास स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, और इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं जो इसका इन्वर्स हो जाएगी 1/2 पाई रूट स्प्रिंग फैक्टर डिवाइड बाय इनर्शिया फैक्टर। ओके, गॉट दिस पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर हम देखें स्प्रिंग फैक्टर हमने एम जी एल ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। इनर्शिया फैक्टर जो है सिंपल पेंडुलम में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉब, तो दैट इज़ एम एल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ अगर हमने अपने इस वाले फॉर्मूले में पुट करी इनर्शिया फैक्टर की और स्प्रिंग फैक्टर की, तो हमें मिल गया टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो हमें मिल गया टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम एल स्क्वायर बाई एम जी स्क्वायर, एम से एम कैंसल, एक एल से एल कैंसल, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी हमें मिल गया डेरिवेशन फॉर्मूला टाइम पीरियड का। और वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट जी बाई एल। ओके, तो ये टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी आपका जो फार्मूला है, ये अगर आप ऊपर देखें तो ये यहाँ पे से मैच हो गया ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, क्योंकि हमने जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो कैलकुलेट किया हुआ है वेयर वाई इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन, तो देखो इससे किस तरीके से मैच हो गया यहाँ पे हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। फिर अगर हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग की, तो पहले मैंने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की बात की, हॉरिजॉन्टल लेवल प्लेन पे एक फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट हमने इमेजिन करना है, म्यू ज़ीरो है, और अगर आप अपने मास को एक्स लेंथ डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हो तो इट विल ऑसिलेट बिटवीन अबाउट द मीन पोजीशन, ये माइनस एक्स जाएगा यहाँ तक और फिर वापस आएगा। तो इस तरीके से इन दो पोजीशंस के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग के लिए हमें पता है एक स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं जिसको हम के कहते हैं। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पे उसकी लेंथ उतनी ही बढ़ेगी। तो F इज इक्वल टू के एक्स वेयर के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स
इफ़ योर डिस्प्लेसमेंट इज़ 1 मीटर। तो अगर हम यूनिट लेंथ स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है एसएचएम के केस में वो हमारा स्प्रिंग फैक्टर के इक्विवेलेंट है। इन केस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज स्प्रिंग फैक्टर। और अगर हम इसमें फोर्स की बात करें तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग का देखें तो जब हमने इसको एक्सटेंड किया, खींचा इस तरफ, उस टाइम पे स्प्रिंग तो फोर्स इसी तरफ लगा रहा था, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्प्रिंग के फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एंगल 180 डिग्री है। तो इसीलिए ये बार ये इसको हटा के बताता हूँ, सारा काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई यहाँ पे। तो जब हम स्प्रिंग को फोर्स लगा रहे हैं, वो जब हम मास को खींच के राइट साइड को ले जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग तो उस पर फोर्स एफ डायरेक्शन रिवर्स लगा रहा है ना, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो जो फोर्स आएगा वो आएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो स्प्रिंग फैक्टर हमारे पास के और इनर्शिया फैक्टर हमारे पास एम मास। तो टाइम पीरियड जो है स्प्रिंग का वो सिंपल टी इज इक्वल टू 2π√m/k। अगर वर्टिकल स्प्रिंग की हम बात करते हैं तो जो ये हमारा फोर्स है F, ये इक्वल टू mg हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका। तो अगर हम अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स में F की जगह mg पुट कर दें तो k की वैल्यू आ जाएगी mg/x। और ऊपर वाले फार्मूले में अगर हम k की जगह वैल्यू पुट कर दें mg/x की, तो ये x ऊपर चला जाएगा, m से m कैंसिल, और t इज इक्वल टू 2π√x/g। तो ये टाइम पीरियड आ गया। तो यहाँ पे भी आपकी जो x है वो एक्सटेंशन है। अगर किसी बुक में एक्सटेंशन को l लिखा हुआ है तो यही फार्मूला आप 2π√l/g भी लिख सकते हो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स हो गई 1/t, तो वो 1/2π√g/x या फिर 1/2π√g/l। तो ये आपके पास लोडेड स्प्रिंग का टाइम पीरियड आ गया। तो इधर ये हमारे पास आज के लेक्चर को हम ओवर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्री, फोर्स्ड और डैम्ड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है इधर पूरा हो जाता है इस लेक्चर के साथ, ठीक है। तो ये वाला PDF भी आपसे शेयर करूँगा मैं आपके वीडियो के साथ, और जूम क्लास में फिर हम इसका कोई डाउट है तो कल मैं आपको इसको जूम क्लास में भी कवर करवा दूँगा। लाइक ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।